Hey guys, how are you? I hope you are doing well. So in this video, and this will be the playlist in which I'll be talking about science, and we all know that, and I'll be majorly dealing about the UPSC CDS examination, and we all know that science is very important. In order to clear GK, science becomes very important. As I am an engineer, so I know the importance of science, because science is my chapter, science is my cup of tea, because आई एम अ साइंस स्टूडेंट्स एंड इंजीनियरिंग में भी हमने बहुत सारी साइंस के टर्मिनोलॉजीज यूज़ की है. तो बट स्टिल वी नीड टू फ्रेशन अप सम ऑफ द टॉपिक्स, एंड दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ माइंड टू मेक वीडियोज़ फॉर दिस. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ चैप्टर ऑन मोशन. मोशन इज द स्टार्टिंग चैप्टर फॉर फिजिक्स. सो फिजिक्स डील करने वाला हूँ, एंड इन दिस प्ले लिस्ट एवरी ऑफ द साइंस वीडियोज़ विल बी देयर. फिजिक्स पहले, फिर केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी. And I will be focusing from NCERT. As we all know, UPSC कंडक्ट कराता है CDS को, and CDS UPSC जो है मेजरली डील करता है NCERT से. I don't prefer any other book as far as knowledge is concerned. NCERT is the main source of my knowledge. So let us start with motion. Like motion. Now see, and motion is the first chapter of 9th standard, so वहीं से physics start हुई है. Now let us understand what is motion. If this is an object A, and it is at position x, like this is position, it is position at x, and this object A reaches at position y in a certain time t, which means if the object is changing its position with respect to time, then that motion, that object is in, we say that the object is in motion. For example, let us try to understand with a graph. I am considering that you know how graph works. Okay, if I am taking x axis as time, that is in seconds, and y axis is like distance in meter. ठीक है. Now if I divide it in 5, 10, 15, 20 seconds, and this 5 meter, 10, 15 and 20. Now see, if the object is in 0, like its origin, उसने ना चला है आगे, ना उसने टाइम बर्बाद किया है. Now if the object starts at, like in 5 seconds it covers 5 meter, in another 5 seconds it covers another 5 meter, in another 5 seconds it covers another 5 meter, which means object is in motion. At this time, at 0th time it was at position O, at 5 second it was at position A, at 10 second it was at position B, and at 15 second it was at position C. So what we can make out from this? It is changing its position from time to time. That means the object is in motion. So I hope that you understood this topic. Now motion has two: uniform motion, ठीक है, uniform motion and non-uniform motion. Now this what I have explained you at this time. गौर से देखना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये 5 सेकेंड हर एक इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है. मतलब एक 5 सेकेंड में उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अनदर 5 सेकेंड में अनदर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अनदर 5 सेकेंड्स में अनदर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, विच मीन्स दिस इज इन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. नॉन यूनिफॉर्म मतलब सिमिलरली, लाइक अगर पहले 5 मिनट में वो 5 मीटर कवर कर रहा है, अनदर 5 सेकेंड्स में वो 5 सेकेंड्स में 4 मीटर कवर कर रहा है, फिर अनदर 5 सेकेंड्स में वो 3 मीटर कवर कर रहा है, अनदर 5 सेकेंड्स में वो 4 मीटर कवर कर रहा है. सो दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, राइट. सो दिस 5 जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सो दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन. सो पहले 5 सेकेंड्स में वो 5 मीटर कवर कर रहा था, फिर अनदर 5 सेकेंड्स में वो 4 मीटर कवर कर रहा था, अनदर 5 सेकेंड्स में वो 3 मीटर कवर कर रहा था. सो दिस इज, वी डोंट टेल इट एज यूनिफॉर्म मोशन, obviously. So this is the difference between uniform motion and non-uniform motion. So guys, these terminologies are very important as far as physics is concerned, क्योंकि जो भी questions बाद में solve होंगे वो सारे इसी पे regarding होंगे. कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि वो ऐसे जा रहा था. They will only mention non-uniform motion था, linear motion था, या uniform motion था. Now the next thing what it is average speed. Now this average speed is very important as far as any of the examination is concerned, and as far as knowledge is concerned, because I still know a lot of people who commit mistake in this. Now we know क्या होता है कि हम average
एवरेज, आई होप इट इज विजिबल। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। सो हम भी क्या करते हैं, एंड ऑल्सो वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। ये तो हमने बेसिक पढ़ा है। तो एवरेज स्पीड को क्या करते हैं हम? सम ऑफ ऑल स्पीड्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्पीड्स, टोटल नंबर ऑफ स्पीड्स करते हैं हम, ठीक है। विच इज वेरी मच रॉन्ग, which is very much wrong. This is not the concept as far as science is concerned. This is wrong. ये गलत है, ठीक है। I still know a lot of people who has done this kind of mistakes. तो average speed का फॉर्मूला क्या है? Average speed का फॉर्मूला is total distance covered, ठीक है, total distance covered divided by total time taken. So this is the main formula. And you should be remembering this formula only. ये formula काम नहीं करता. This is actually wrong. Nowhere it is written. But we tend to make this kind of mistake because we have studied maths में ऐसा formula. इसलिए हम ऐसा करते हैं. No doubt मैं भी पहले ऐसे करता था, अभी ऐसे कर रहा हूँ. So this is the main formula. And हर क्वेश्चन में अभी हमेशा मैं ऐसे एवरेज स्पीड इज टू टोटल डिस्टेंस कवर टाइम टोटल टाइम टेकन, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. सो वी हैव गिवन अ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड एवरेज स्पीड को हम v सपोज करते हैं, लाइक नॉट एवरेज स्पीड, स्पीड को हम v देते हैं, ठीक है, एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब d या फिर s, ठीक है, s हम s कंसिडर करते हैं, एंड टोटल टाइम टेकन t. सो दिस इज द फॉर्मूला एंड इसका SI यूनिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. स्पीड का क्या होता है? किलोमीटर पर आवर, इसका भी किलोमीटर पर आवर ही होगा, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड, एक कोई गल है, ठीक है. सो आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो क्वेश्चन में करना है वो उस हिसाब से करते रहना. Now look at this question. This question will explain you what is average speed. An object travels 16 meter in 14 seconds and travels another 14 meter in 2 seconds. Find the average speed. So see solution. Now average speed का क्या solution था हमारा? सबसे पहले हम क्या consider करते हैं? D1. Like पहले कितना distance cover किया? 16 मीटर, कितने टाइम में? T1 is equals to 4 seconds में, ठीक है. And another D2 distance कितना क्या कवर किया? 14 मीटर इन टाइम 2 सेकेंड्स, राइट. सो हमको मालूम है, वी नो बाय द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट, टोटल टाइम. सो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस मतलब 16 प्लस 14 बाय टोटल टाइम 4 प्लस 2. सो क्या हो जाएगा? 30 बाय 6 5 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? नाउ 16 मीटर और सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इज द आंसर. फाइन, यू अंडरस्टूड द टॉपिक, राइट. नाउ अनदर मेन कॉन्सेप्ट विच इज वेरी वाइडली यूज्ड, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस. स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस इज अ वेरी माइनर डिफरेंस, बट इट इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस ऑल्सो. सो व्हाट हैपेंस इज द डिफरेंस अगर आप समझ गए तो आपको चीज़ समझ में आने लग जाएगी. एज फार एज 9th and 10th इज कंसर्न, सिर्फ हम स्पीड कंसिडर करते हैं, बट स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, जस्ट फॉर अ फैक्ट ऑफ मैटर जो मैं आपको डिफरेंसेस बताने वाला हूँ. वेलोसिटी हम बाद में कवर करते हैं, लेकिन हम अभी से यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. स्पीड क्या है? स्पीड की जो है मैं बताता हूँ. स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, मैं बताता हूँ उसका डिफरेंस क्या है, एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. I'll just a second, I'll tell you what it is. And स्केलर क्वांटिटी मतलब विदाउट डायरेक्शन, मतलब स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, विदाउट डायरेक्शन, ठीक है. विदाउट डायरेक्शन मैं बताता हूँ कि, एंड वेलोसिटी में विद डायरेक्शन होता है, विद डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बस इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, इफ दिस ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन एट 100 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड क्या होगी? इस 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर. सिमिलरली अगर इफ दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर इस दिस साइड में, ठीक है, तो इसकी स्पीड भी यही होगी, ठीक है. लेकिन सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी बोलूँ इसमें, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो इसकी वेलोसिटी जो है हो जाएगी वो 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. दैट इज पॉजिटिव. मतलब
प्लस साइन, जो प्लस साइन जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, प्लस साइन मतलब उस तरफ जा रही है वो, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ जा रही है, दिस इज 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कम्स आउट टू बी, वेलोसिटी कम्स आउट टू बी माइनस, ये याद रखना, माइनस 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड इधर का एंड स्पीड इधर का, ये स्पीड और ये स्पीड में डिफरेंस क्या आया, यहाँ पर हमको कोई साइन नहीं है, यहाँ पर एक साइन है, जो कि साइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन। दिस इज द मेजर डिफरेंस, दिस इज द मेजर डिफरेंस व्हाट वी फेस इन स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट वी डोंट रिक्वायर एट दिस मोमेंट अबाउट दैट। नाउ अनदर मेन कॉन्सेप्ट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, यूनिफॉर्म मोशन। और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म के लिए बताता हूँ मैं। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, जस्ट अ सेकेंड आई विल टेल यू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी विद एन एग्जांपल, इफ आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट माई बाइक और मैं एक इनिशियल वेलोसिटी ले रहा हूँ, पहले पिकअप ले रहा हूँ मैं, यानी कुछ 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 11-15, सो दैट कम्स आउट टू बी इनिशियल वेलोसिटी, जो पहले होता है, पहले, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी मतलब जब मैं कांस्टेंट हो जाए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, तब मेरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है, जो कि वो फाइनल हो जाती है, जो बाद में हम बोलते हैं बाद में, ठीक है। जो भी जैसे भी समझना समझ लो। एंड दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन ओनली गाइज, दिस जो भी मैंने फॉर्मूला बताया दैट इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन, जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन। नाउ एवरेज वेलोसिटी फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, रिमेंबर दिस, डिस्प्लेसमेंट बाय total time taken. If you want to take a screenshot of this, please do. Okay, now what is displacement? Displacement is a new terminology which I have used at this moment. I'll definitely explain it, don't worry. Now I'll tell you what is displacement. For example, consider this as an example. If a man A starts from X, reaches Y and then goes at Z and then comes back to B, सो ऐसे गया वो, ठीक है। सो अगर सपोज ये 5 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो होगा 5 + 6 + 7, सो कम्स आउट टू बी 18 किलोमीटर, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका वो होगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का लाइक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होता है। सपोज ये 10 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 10 किलोमीटर होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज, यहीं लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू, सो यू नो अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, राइट। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, अगर कोई बंदा ए से स्टार्ट किया, घूम फिर के वापस ए में आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो होगा, यस, डिस्प्लेसमेंट इज डेफिनेटली जीरो अकॉर्डिंग टू साइंस, जो कि हम क्वेश्चंस भी समझेंगे इसके बारे में। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इज कंसर्न। Usha swims a 90 मीटर लॉन्ग पूल, ठीक है। दिस इज 90 मीटर लॉन्ग पूल, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, 90 मीटर लॉन्ग पूल है, ठीक है। उस यहाँ से स्विम करती है एंड देन कम्स बैक इन अ स्ट्रेट लाइन इन 1 मिनट, ठीक है। इन 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, ठीक है। 90 मीटर दे रखा है तो मुझे 60 सेकेंड्स में लाना है। एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा गाइज, 90 जाती है 90 आती है, तो 180 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो क्या हो जाएगा ये 180 डिवाइड बाय 60, सो 6 3 ज़ा 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज। नाउ एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। नाउ ये याद रखना कि दैट उषा हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और वो ख़त्म, ये ऐसे जाके वापस यहीं पर आ रही है। वो बंदी जो भी है उषा है, वो यहाँ से गई है यहाँ तक, फिर वापस यहीं पर आई है, तो उसकी इनिशियल पोजीशन जो है वही उसकी फाइनल पोजीशन भी हो जाएगी, फाइनल पोजीशन भी वही हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब यहाँ से यहाँ नहीं, मतलब वो जहाँ से स्टार्ट करी वहाँ जाके वापस आ रही है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट यहीं पर ख़त्म की तो ज़ीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो डिवाइड बाय जो भी है 3 लाइक 60, so 0 meter per second is the displacement. This is science guys, definitely this is science. If the displacement is 0 तो average velocity भी 0 होगी, scientifically 0 होगा, लेकिन स्पीड उसकी 3 मीटर पर सेकेंड होगी। सिमिलरली मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। वर्क डन जो है, वर्क डन इज टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी डिस्प्लेसमेंट मतलब अभी देखो जैसे मैं इस दीवार को पुश कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट इस दीवार का डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो अकॉर्डिंग टू साइंस आई हैव नॉट पुटेड एनी एफर्ट, लाइक वर्क डन किया ही नहीं मैंने, कोई भी वर्क डन नहीं किया, लेकिन आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, आई हैव पुट अ लॉट ऑफ वर्क, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0 है, इसलिए वर्क डन भी 0 होगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ शोइंग यू हाउ साइंटिफिकली थिंग्स वर्क। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस वॉज लाइक क्लियरिंग दिस, यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ये क्वेश्चन दिया। सो विल गो अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ अगेन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो कि ए से डिनोट होता है, जिसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ एक्सेलरेशन होता क्या है ना। एक्सेलरेशन इज मतलब फॉर एग्जांपल इफ हम ड्राइविंग अ कार, सो हम जब एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो कार की स्पीड इंक्रीज होगी, या फिर हम रेस छोड़ देते हैं, एक्सेलरेटर छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि कार स्लो डाउन होती है, तो उसी का मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। मैंने बताया था ना, वो सडनली इंक्रीज कर रहा है और सडनली डिक्रीज कर रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अभी देखो नॉमेनक्लेचर देते हैं, एक्सेलरेशन को मैंने ए दे दिया, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। सो दिस इज डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। सो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन में, ये आएगा, इसको स्टार मार्क बना लेना गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस में ये इक्वेशन सॉल्व होता है, एंड इसका ऐसा यूनिट तो मैं बता चुका हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। So this is very important, again I am telling this is very important. So what do we have learned? Acceleration is rate of change of velocity, that's it, rate of, and I am also telling this, अगर कहीं पर भी रेट आता है तो ये हमेशा याद रखना, बोनस टिप है, कहीं पर भी रेट आता है तो डिवाइड बाई टी आता ही आता है, दैट्स फॉर श्योर। कहीं पर भी देख लो, मैथ्स में, साइंस में, कहीं पर देख लो, रेट ऑफ चेंज आया, रेट आया तो वहाँ डिवाइड बाई टाइम आएगा ही आएगा। नाउ कंसिडर दिस पॉइंट, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में वी हैव गॉट वन इक्वेशन, दैट इज v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये याद रखना गाइस, ठीक है। कंसिडर दिस इज टाइम, दिस इज स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी कर रहे हैं ना। इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नॉट जीरो, ठीक है, सपोज 5, 10, 15, 20, 25, टाइम इज इन सेकेंड्स, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नॉट जीरो विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u एंड इट इज गोइंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एंड इट इज लाइक यहाँ तक पहुँच गया है वो यूनिफॉर्म मोशन, एंड इस पॉइंट पे जो है वो v है, ठीक है। मैं रेड मार्कर से लिख देता हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। सो दिस इज u एंड दिस इज v, ठीक है, मतलब ये फाइनल पोजीशन है अपना, फाइनल पोजीशन। आई होप इट इज़ विजिबल गाइज, फाइनल पोजीशन, एंड दिस इज इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन,
सो दिस डिस्टेंस जो है अपने को ये क्या मिल जाएगा, इतना सा v minus u definitely, and if I try to join this and try to join this, ठीक है. Now we are going to apply some of the formulas of trapezium, area of trapezium and all those kind of stuff to find the equation of motion. Now if I try to find the area of trapezium, like this is trapezium, right? Trapezium OABC. See this OABC. OA is parallel to BC definitely, ठीक है. सो दिस इज ट्रेपीजियम. सो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC फाइंड करूंगा तो कैसे फाइंड करूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ क्या है ये, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल OADC, ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD क्या हो जाएगा, OBD, दिस बिकम्स द हाइट, ठीक है. एंड लेट अस आई हैव नेम इन, मैंने नेम किया है OABDC, ठीक है. एंड लेट दिस बी टाइम t, ठीक है. सो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या है, ABD. अभी कैसे करूँगा, नॉट द RCB में जो खेलता है ABD, नॉट दैट, इज अ गॉड एक्चुअली. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. बेस क्या है अपना BD इंटू हाइट क्या है अपना AD, ठीक है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC क्या हो जाएगा, दिस लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो OA इंटू OC. सो नाउ हम सब जगह पुट करते हैं. हाफ इंटू BD क्या है अपना, BD इज V माइनस यू. अगर ये V माइनस यू है तो ये भी V माइनस यू ही होएगा. तो V माइनस यू ब्रैकेट में AD क्या है अपना, AD इज T प्लस अभी OA क्या है अपना, OA इज U इंटू OC क्या है T. तो क्या हो जाएगा ये, V माइनस यू अपना क्या था हमारा, इसको फर्स्ट इक्वेशन में दे देना, ठीक है. V माइनस यू अपना क्या था, AT प्लस UT. सो क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. नाउ व्हाट इज दिस, क्या निकाला है मैंने, क्यों निकाला है मैंने, क्या पागल हूँ क्या मैं जो ये निकाल रहा हूँ, पागल बिल्कुल भी नहीं हूँ. मैंने क्यों निकाला है, दिस इज आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस AB. सो दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस AB. डिस्टेंस को S डिनोट करते हैं हम, मैंने पहले ही बताया था. तो ये S इज द डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, दैट इज S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. सो जो भी मैंने निकाला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज नथिंग बट द डिस्टेंस लाइक फ्रॉम A टू B. सो A टू B डिस्टेंस, अगर A टू B अगर डिस्टेंस लगाऊँ तो SAB इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. सो दिस इज, और इसका SI यूनिट हमेशा कुछ भी मल्टीप्लाई करो, S डिस्टेंस है मतलब किलोमीटर या फिर मीटर में आएगा, कोई एक जो भी है, ठीक है. एंड दिस बिकम्स आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह काम आने वाला ही है. ऑल्सो फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अपने को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कैसे मिलेगा, S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC. नाउ आई विल apply some different formula. We know the area of trapezium is sum of its parallel sides into height. तो क्या हो जाएगा, sum of parallel sides मतलब OA plus BC into height क्या है अपना, height is T divided by 2, ठीक है. sum of parallel sides into height divided by 2 होता है ना. तो S is equals to क्या हो जाएगा, S is equals to OA क्या है अपना, OA is U plus V into T by 2. Also अभी now see, मैं इसको सीधे करूँगा नहीं, मुझे और एक चीज़ चाहिए, वहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल लूँगा. तो t की वैल्यू क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू u प्लस वी बाई 2 इंटू टी की वैल्यू क्या होती है वहाँ पर, इस इक्वेशन से निकालूंगा, मतलब t की वैल्यू v माइनस यू बाई ए हो जाएगा, ठीक है. सो a को उधर भेज दूंगा मैं, या 2a को उधर भेजूंगा, 2as इज इक्वल्स टू u प्लस वी इंटू यू माइनस वी. तो u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस तो v माइनस यू है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. सो 2as is equals to v square minus u square is the third equation of motion. So this is very important guys. I want you to remember all this क्योंकि बाद में बहुत जगह काम आएगा. इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड यू कैन ट्राई टू प्रैक्टिस इट. until unless guys you don't practice it you won't be able to understand it. क्योंकि जब तक ये चीज़ें दिखने में अच्छी लगती है, सिंपल लगती है, लेकिन है नहीं फिलहाल, क्योंकि सारी चीज़ें क्या क्या सब्सटीट्यूट करना है, कहाँ करना है. सो आई वांट यू टू डू इट बाय योर साइड ऑल्सो. सो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किए क्योंकि जस्ट तो यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट इट, राइट.
कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ सब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पता होना चाहिए। बेसिक जब तक पता नहीं होगा तब तक आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी नहीं, ठीक है। सो दिस 3 फॉर्मूलाज आई एम गोना यूज इन एवरी फिजिक्स, इवन 12th स्टैंडर्ड में भी यूज होती है। So this is very important. I hope that you understand this concept. Any doubt you can comment in the comment box. I'll definitely reply. Now let us try to understand this concept. अभी concept कर लिया, main तो हम questions करना है, question से ज़्यादा चीज़ें एकदम clear हो जाएगी guys. So watch this questions very carefully. A car accelerate uniformly. Not don't confuse yourself. यूनिफॉर्मली बोला तो एक ही स्पीड से नहीं जाएगा। एक्सेलरेट मतलब वो बढ़ रहा है और यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है मतलब धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। फ्रॉम 18 km/h to 36 km/h इन 5 seconds. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना आपको, ठीक है। सो वी नो 3 फॉर्मूला है, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी पहला वाला, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा वाला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as ये तीसरा। 3 फॉर्मूले लिख के रख लेना हर क्वेश्चन के पहले, ठीक है। तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हमको क्या क्या गिवन है, हमको दिया है इनिशियल वेलोसिटी। नाउ आई एम नॉट गोना राइट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड ऑल। सो u इज 18 km/h दे रखा है, ठीक है। नाउ गाइज लुक, दिस टाइम हमको सेकेंड्स में दे रखा है। मेरे को हमेशा ऐसा होता है कि अगर ऐसे इंट्यूशंस आ जाते हैं, इंट्यूशंस क्या जानना चाहिए आपको, km/h सेकेंड्स, km/h और सेकेंड्स मैच नहीं होते। मुझे पहले पता चला, क्वेश्चन पढ़ रहा होता तभी। तो या तो इस 5 सेकंड को आवर में कन्वर्ट करो या 36 और 18 को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करो। सो आई टेंड टू कन्वर्ट इन मीटर/सेकंड। सो 18 इंटू km/h से मीटर/सेकंड में जा रहा हूँ, कम में जा रहा हूँ तो 5/18, तो 5 मीटर/सेकंड। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने समझाया है, कार्ड में दे रहा हूँ, देख लेना। एंड ये आ गया। एंड v इज अपना 36 km/h, ठीक है। सो 36 इंटू 18, 5/18, सो 18 टू ज़ा 10 मीटर/सेकंड। अपना u और v आ गया और टाइम क्या दे रखा है आपको 5 सेकेंड्स, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कौन सा, ये बहुत टफ लग रहा है मेरे को, ये भी टफ लग रहा है, मैं वो पहले वाला उठा लेता हूँ। v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, क्योंकि मेरे को v पता है, u पता है और a पता है, नॉट t पता है। तो मैं तीनों पुट करके चौथा वैल्यू निकाल लूँगा। अभी यहाँ पर मेरे को बहुत डिस्टेंस नहीं पता, यहाँ पर मेरे को भी डिस्टेंस नहीं पता, तो मैं वही लगाऊंगा ऑब्वियसली। तो v क्या है अपना 10 - 5 इज इक्वल्स टू a निकालना इंटू t क्या है 5, तो 5 इज इक्वल्स टू 5a। तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड एक और निकाला ना डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए कौन सा लगाऊं मैं, सेकंड वाला लगा लूँ क्योंकि ये स्क्वायर वाला है, चीज़ें मेरे को अच्छी लग रही, या तो दोनों लगा के देख लेना आप लोग, ठीक है। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो u क्या है अपना 5 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू a क्या निकाला अपन ने 1 इंटू टी स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू 25 प्लस 25/2। सो s इज 25 प्लस 12.5 is 37.5. So this is the concept which you gonna use it, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s से भी निकाल लेते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v क्या अपना 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू s। तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 2s। तो 75/2 इज s। तो s कम्स आउट टू बी 37. आपको जो अच्छा लगता है वो लगा लेना। So this was it. This was it about motion chapter. This was the first chapter for physics. आगे बहुत सारे chapters आने वाले हैं. So I want you to practice it. Questions screen पे दिखा रहा हूँ. Practice करो. जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, चीज़ें पता चलेगी आपको। आंसर नहीं पता चल रहा है कमेंट में करना, मैं कमेंट में सारे आंसर्स बता दूंगा कि क्या क्या कौन से आंसर्स है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप NCERT बुक से ज़रूर जा सकते हो। सो I hope that you will understand this concept better if you try to solve these questions. And if you have not subscribed to the channel, I want you to subscribe the channel. And because I worked very hard for you guys, yaar, I want you to subscribe the channel, hit that bell icon and like ज़रूर करना, share ज़रूर करना. Till then, take care, bye bye. I'll meet you next.